Namaste, friends. I welcome you to the latest episode of Authors and Books. And today we have with us Sandeep Singh ji, who has written Namaste Sandeep ji. And it's a very, like he has written two volumes on temple economy. And they are very interesting, thought-provoking. And now we are going to delve into the journey of writing these books. Sandeep ji he quit his job in 2006 to immerse himself in the Bharatiya way of management. And since then, he has been writing and lecturing on this subject. And he has authored 12 books so far. And The Temple Economics, Volume 1, and A Decade for Mandir, Volume 2, being his 11th and 12th, respectively. And Sandeep ji also serves as a guest faculty in IIMs and other prestigious institutions. And additionally, he conducts walkthroughs on Bharatiya business history. So these are the two volumes. Yeah. Very thank you. interesting and very relevant. So I think we can start with what was the idea, what was the thought that made you write on temple economics, and the kind of challenges that you faced. Please, if you can. Yeah. So first of all, thank you so much for giving me an opportunity, and to my books also. Uh, I have written in one of my, actually in my second book called Indian Ocean Strategy. It was about Indian way of management, on 2 pages on temple-based economy. And a lot of friends used to urge me to write more, and I was asked to speak on it at quite a few places. And that was way back in 2008-9. But during COVID, when it started, again something very interesting happened. There was sudden demand from Tamil Nadu state government that temple should give money during the Chinese virus, popularly known as COVID. And neither the central government nor any state government had said that there is shortage of funds. But the state government of Tamil Nadu made a demand, and then a whole lot of Hindus also joined the chorus. Tamil Nadu government had to take back that order after few people went to the court. But again, that debate started that, why temples or why money in temples. So I said it's the right time to write the book. And there's another small related point. During COVID, we saw a lot of people walking back to their home, hundreds of kilometers. Some walked alone, some with the family, some with their pet, husband, wife, kids, or parents. So I wondered that what gives that confidence for people to walk. You ask me or most of us to walk the 2 kilometers, we won't, and walking an unknown path, people walked. So where did this confidence comes from? And that's where I thought that is something, we walk a lot, Tirth Yatra to our dharmic sthans, Vaishno Devi, Sabrimala, Amarnath. So people are used to walking, and they know ye unka desh hai, that's their country, nobody will harm. And there are mandirs at every stop which will feed them and give them rest. And mandirs or trust related to mandirs did come forward. The last count I had done long back, again when I started writing the book, there were more than 100 odd crores were given by different mandirs for different charity work related to the film. So this was the two things I said. Lockdown hai, there are confusions, so best time to write the book on temple economics. Uh, you talked about challenges. The two things I must talk about. One, I didn't know the subject is so big. When I started writing, I सोचा कि 6 महीने में कर देंगे. It took me 3.5 years. I could have kept on writing for another 3.5 years, and it would not have got over. So क्योंकि इतने मंदिर हैं और उनके इतने perspectives हैं इकोनॉमी पे, it's very difficult to cover all of it. And second part that I write in second volume with the corrective measures also is that हम हिंदुओं ने अपने मंदिरों पे बहुत कम किताबें लिखी है. We Hindus have written very few books on our temples. Most of the books have been written by Firangs. It creates two problems. One, it is from their perspective, for which they can't be blamed. Second, they are very expensive. Right. Generally they are published as a coffee table book or
the foreign edition, so that the common man, it's out of reach of common man. Of late, I think last 2.5 years, lot of books are being written on mandirs, but that is something we need to think, and lot more people need to start writing about it. Right, right. I think that you have talked about in the initial chapters of your book, in the volume 1 I'm talking about different terminology in the sense that okay, we think that a mandir and temple is the same thing. Similarly, Arthashastra is the economy. That's how we take it. And when we talk about the Arthashastra, when we talk about the GDP, and when we say that GDP is rising or the economy is prospering, indicating the GDP is the indicator for that. So, do you have you find anything, any similar term in Arthashastra that that signifies that okay, the economy is flourishing because of certain this thing, or is it GDP is irrelevant to us as in terms of Arthashastra? So please tell us about the difference between Arthashastra and economics and the GDP thing, Okay. please. The first thing is that in language English itself very new. And then the word the GDP was coined in 1930s, while Arthashastra Chanakya wrote some 2,500 years back, and he himself write that this is a compilation of all other Arthashastra written before him. So he wrote kind of a critical edition at that point of time. So obviously Arthashastra is very old. Economy is a developing concept if you put it in front of Arthashastra in terms of time scale. Because the economy is about production, consumption of the goods or the services. It has got nothing to do with morality or ethics. And that's why if you read the IMF report, I have quoted in the book that they are worried that European countries are not reporting exact figure on prostitution. So, if there is a war, people die, it adds to the economy because new building will be constructed. People fall sick, they will eat medicine. So, for GDP, there is no human angle to it. अर्थशास्त्र is very different, and for the readers to put it very simply, हमारे यहाँ हम लाभ नहीं लिखते हैं, हम शुभ लाभ लिखते हैं. It is qualified, it has to be auspicious. खून चूस के कमाया हुआ पैसा या लाभ लाभ नहीं है, वो लोभ है. ना बहुत सिमिलैरिटी है लाभ और लोभ में, तो ये शुभ लाभ है, बहुत बेसिक. दैट इज व्हाट अर्थशास्त्र इज, जहाँ पे आपको हर चीज समझनी है. और अगर अर्थशास्त्र चाणक्य क्या पढ़ें तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जीडीपी क्या है, कि हमने इतना जीडीपी है, हमारा दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी है, सो व्हाट. दुनिया में 290 देश हैं, हम नंबर 1 है, नंबर 2 है, बड़ा आर्टिफिशियल कंपटीशन है. उससे लोग खुश हैं कि नहीं वो जाहिर नहीं होता है. अर्थशास्त्र में कहा गया है, हमारे यहाँ अंत्योदय का कंसेप्ट है कि जब समाज में हर व्यक्ति खुश है. आचार्य चाणक्य बड़े स्पष्ट शब्दों में चंद्रगुप्त को कहते हैं, जब वो एक बार गुस्सा होकर कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ, ये करना होता है, वो करना होता है, मैं राजा क्यों बना, तो कहते हैं कि राजा तब खुश होगा जब समाज में हर व्यक्ति खुश होगा. तो वो अर्थशास्त्र का मेजरमेंट है. जीडीपी लोगों को मार के, बीमार करके, हॉस्पिटल बना के, दवा बीच पे आया हुआ पैसा जीडीपी है. वो सिर्फ लोभ है, लाभ नहीं है. शुभ लाभ तो कतई नहीं है. राइट राइट. सो लाइक इससे पता लगता है कि हमारा जो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो एक तो होलसम है, मतलब इट टेक्स केयर ऑफ द मेंटल, फिजिकल, societal, everything that is under the sun. It covers that, the well-being of every aspect of human life. And also that we are much जब ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के आए भी नहीं थे, तब से हमारी सभ्यता जो है इकोनॉमी को बड़े अच्छे ढंग से और बड़े धार्मिक ढंग से जो है जीती है. तो आपने इसी अगर हम इसी अपना इटर्नल सिविलाइजेशन की या इटर्नल उसकी बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, तो आपने काशी का मेंशन किया है, वाराणसी का. तो आपने यू हैव टॉक्ड अबाउट द रेजिलियंस ऑफ काशी, and because of its temples, innumerable temples, or be it because of its Brahmins,
be it because of the economy, the economics that runs around these, the pilgrimage and everything. तो उस पे कुछ बताइए, जो धर्मो रक्षिता रक्षितो का जो कॉन्सेप्ट है, जो है उसमें कुछ कुछ इंटरेस्टिंग एपिसोड्स जो हैं वो वाराणसी को लेके, अगर इफ यू कैन। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और काशी जी जैसे हम कहते हैं हमारे यहाँ, कि इतिहास से भी पुराना है, मतलब इट्स ओल्डर देन हिस्ट्री, तो इतना पुराना है और इतने वर्षों से है। और वहाँ पर हजार वर्षों से मंदिरों पे आक्रमण होते आए हैं, और हर बार लोगों ने खड़े होकर लड़ाई करी है। दे हैव फॉट बैक, एंड दिस फाइट हैज बीन एट थ्री लेवल, ब्रॉडली टू पुट इट। देयर इज बीन a physical fight, and physical fight or using weapons has been at both individual level as well as a group level. एक ब्रिटिश ने 1632 में डॉक्यूमेंट किया है कि एक राजपूत के body was hanging from the tree. When they figured out, they said कि one of the Islamic invader had sent some few people to break the temple. He fought, they killed them. He sent some more soldiers. He fought bravely and killed some more. But ultimately, he was outnumbered and he was killed. And after that, they had kept his body left hanging on the tree. That is in 1632. In 1664, we know the Naga sadhus, collectively sadhus fought. So common man, sadhus, kings, everybody has fought back there. And the interesting part here is that that is where Tulsidas ji also realized, and he re-established the akhadas. So that's a very important concept. Today's people have forgotten that every mandir had an akhada. All across the India, they had different names. Like in Puri, they are known as Jagaghars, where the young kids come, they practice, and they're one of the last barriers for the temple and for the society to stand up. The common man stands up. Uh, Financially, people have fought back differently. So during the time of Islamic invaders, there was an occasion that they killed people massively, and they said all those who have left have to convert or they have to pay jizya. So the worry was that either people will leave or convert because they were not in a position to pay the jizya. Then the king from Karnataka, Narasimha III, actually paid the jizya for people of Varanasi. So Kashiji belonged to every Indian in all parts of India. That's something comes across. Spiritually, they fought back after Sikandar Lodi broke the temple 1494. 70 saal tak there was no mandir to worship, and then there was a severe drought, and then for a few years there was no rain. People went to Narayan Bhatta, was a Swami there, and he said, since there is no mandir, there won't be rains. So the Islamic king came to know, and he said, if I allow you to build the temple, will there be rain? He said, yes, of course. So the mandir was rebuilt and the rain did happen. So people have fought back at every level you can think of. And as I mentioned that there was a time when there were so many people were killed, so no Brahmins were left. So the worry was that there won't be any Gurukul left. How then the Brahmins from Maharashtra and Andhra went and settled there. And again, the tradition was alive. So people have fought back at all possible level that you can think of for Kashiji. And the economy part also, I'll tell you, is that when we talk about some of the oldest cities in the world, what you can come across the names will be Patliputra, Ujjain, Pushkar, Rameshwaram, and Kashiji. Now, they don't have any industry. So they survive because of mandirs. And I'll give you a I use compare and contrast method. So Detroit is known as the city of modern economy, the Motown, the automobile industry started there. But today, if you type Rust Belt of USA, it is Detroit and surrounding small cities, suburbs, because the car was manufactured there, and those ancillary units were there in the suburbs to supply the parts. Right. After some point of time, it was cheaper to produce car in Philippines, Korea, Japan, India. So the manufacturing shifted, and the Detroit is a big city. The population has gone down by 1/4. And if you just Google the ghost cities in Russia, in China, you'll find, because in the modern industry, a replacement of the product will come or something will be made cheaper and the product will die. So these cities don't survive. Most of them wouldn't survive 100 years also in the form. But look at this, as I say, Kashiji is known as older than history without any industry. So actually the economy revolved around the mandir. And just to add, what product, if you ask me? So if you talk about saris, we know it's a few billion industry. So just think of the name of the saris. They come from temple towns.
Right. Banarsi, Sambalpuri, Kanjivaram, Dhakeshwari, each one. And what is the significance? जो फूल पत्ते पार्वती देवी को चढ़ेंगे वही बनारसी साड़ी में डिजाइन होंगे, Okay. संबलेश्वरी साड़ी में वही This, होंगे जो yes, this reminds me of, I did one document on Ahilya Bai Holkar ji. या And then there I have mentioned Maheshwari sari, how the concept and temple border or the द temple मोटिव, used हाँ, to be, it करेक्ट, used to be, and the weavers came from Surat also. या She's sort of settled them, made a city for them, या and around the, Maheshwar, so everything, the whole cloth industry, the या sari industry flourished. या So सो I think this is also like sort of what do you say, integration. There was no difference between north south divide or all these not things only were not that, there. also I'm coming back to the sari. When you wear a Ji. sari, it represents Hindutva or Hinduism so strongly that when Portuguese ruled Goa, they had banned the weaving and wearing of sari for 200 years. And it's greatness of our ancestors, those who lived in Goa, that for 200 years the weaver weaved the sari in the night underground, and women used to wear sari only in the night, and that's how they kept the sari tradition in Goa alive. So that's the powerful connect of spiritual अध्यात्म, हिंदुत्व, अध्यात्म, मंदिर और साड़ी का। और ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था मंदिरों के इर्द गिर्द रही है और आज भी है। Right, right. It's a continuing tradition. Yeah. तो बट सी आप बोलते हैं कि मंदिर जो है वो उसको इकोनॉमी को फ्लोरिश करने के लिए, उसको समाज को बेशक मतलब जो है समृद्ध बनाने के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन था उनका। कंट्रीब्यूशन क्या, उसके रिवॉल्व ही करता था सब। तो जो हम अब एक नैरेटिव बीच में चलता है कि जो जितने भी इस्लामिक इन्वेशंस हुए हैं जिसमें मंदिर की डेसिक्रेशन और जो सब हुई हैं वो इकोनॉमी के मतलब उसके चक्कर में हुआ, बिकॉज ऑफ दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय एंड प्लंडर। तो डज इट जस्टिफाई दैट नैरेटिव कि इट वाज फॉर प्लंडर ओनली द इस्लामिक नहीं, इन्वेजन? ये लेफ्टिस्ट का हॉगवाश है और उसकी राइट, राइट। बाय इस्लामिस्ट ऑल्सो कि हमने मंदिर में वेल्थ था इसलिए तोड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं है। और आपको लूटना होता तो आप लूट के चले जाते, आप मंदिर क्यों तोड़ते, मंदिर की मूर्तियां क्यों तोड़ते। आज भी बैंक में चोरी होते हैं तो बैंक में चोरी होती है, बैंक में आग तो नहीं लगाई जाती है। राइट, राइट, राइट। करेक्ट, आप चोरी करते हैं, आपको जो सामान चाहिए, सोना चाहिए, रुपए पैसे चाहिए, आप लेके जाते हैं। मंदिरों में गाय काटी गई, गाय के खून बहाए गए, अकबर ने किया ये काम और इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड। अकबर ने पूरे मंदिरों में गाय काट के And खून, Akbar is like taught to us as the most secular Mughal हाँ, emperor. क्योंकि उसने जी, शायद सबसे कम मारे होंगे, कुछ जी, लाख ही हाँ। मारे होंगे, बाकी ने कई जी, लाख मारे। तो जी, जी, जी। स्केल ऐसा था, बिल्कुल। तो वो मॉडरेट हो गया उनके लिए। जी, 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 जी। तो That is, I mean, revealing quite. अच्छा, एक और चीज है, जैसे अभी वी टॉक्ड अबाउट इस्लामिक इन्वेडर्स जो थे, उन्होंने प्लंडर किया, मूर्तियां तोड़ी, वो संस्कृति को भी हमारे डैमेज करना चाहते थे, और वो हमारे जो है जो मॉनेटरी या जो फाइनेंशियल वो है उसको भी डैमेज करना चाहते थे। बट व्हेन ब्रिटिशर्स केम, they though they also came with an ideology, but what they did was उन्होंने एक कमेटी बनाई, आपने मेंशन किया है अपनी बुक में कि उन्होंने रीएस्टैब्लिश किया और रिवाइव किया कुछ मंदिर्स को, तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए किया। तो मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर इफ द ब्रिटिशर कुड सी द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द टेम्पल, हाउ कम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया he was skeptical about Hindu revivalism in by renovating mandir, or why was it is like vision was short vision वो था, या फिर जो है he could not see that कि जो है मंदिर जो है वो दोबारा एस्टेब्लिश होते हैं, तो हिंदू रिवाइवलिज्म से क्या प्रॉब्लम, जो है मंदिर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? व्हाट डू यू थिंक? I think he had taken his secularism too far, and he had anyway written that he was an accidental Hindu, as we read.
Right. It was a Hindu hate, I guess, or his lack of understanding of the subject, whichever way you put it. Because even on the inauguration of Somnath Mandir, Rajendra Prasad had said Mandir is a center of economy. And Yes. British, when that's British realized that how to capture, because not only center of economy, but they could control the wealth. So when British came and they shifted the capital, wanted to shift the capital from Madurai to Chennai, uh, because Madurai was the capital those days. So when they built Chennai, nobody was willing to shift. So they invited a lot of businessmen, traders to set up temples there. Because Right. once the temples will be there, the people will come and stay in the city. That's how the Chennai city got established. Right. 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 So their understanding was very clear. And when they wanted to capture Orissa, they used the pujaris of Puri to support them, and they took their support. And the pujaris of Puri did support initially, but when they realized, they fought back. And when they fought, 52 of them were killed, and their bodies were left hanging for a long time in front of from the trees in front of the Puri Mandir. So just to mention that we don't understand or acknowledge or appreciate our pujari's role many times. So Right. Right. So much of cruelty by both yeah, the Abrahamic religion. So, like when we talk about the Britishers, they came with their ideology, their their theory of that okay, we are going to teach civilization to you. Bharat is not very developed, and it's very primitive. So we have to develop. We are giving you the kind of civilization that you. So somehow, in doing that, they attacked our cultural practices, and those cultural practices were also related to temple. I think you have talked about Bharatnatyam. So what I see today is there was a something in the news that they have changed the certain mudras of the Bharatnatyam so to convey the verses of Bible. So do you think all the cultural practices which were like beneficial in terms of adhyatmic as well as the other roles that they do, so they first make it turned it into an art form and then make it secular and then totally उसको जो है हिंदुइज्म से या हिंदू से बिल्कुल दूर कर दिया गया. तो what do you think about that? yeah, and they have done it very systematically, and credit to them that they realized that these are civilizational war, and they had to be fought over centuries. It can't be won over in short period of time. So look Right, at Bharatnatyam. They came, they attacked the Devdasi Pratha, and the right. people they used was always like one of us. So there's a daughter of Devdasi. She was used, as I've documented in detail in the book. And then the first they said it's anti-woman. Then they said it's for the lower caste women, and they slowly alienated by law that they can't be. Though the Devdasis were highly educated, they fought back. But there was a set of Indians who, whatever Brown Sahib said, they agree. And Theosophical Society played an important role. And very interestingly, when they were objecting to Indian women doing Bharatnatyam, a lot of American came and performed at Theosophical Society Bharatnatyam. They learned that time. So Okay. the parallel two narratives were running. One side they were learning, and the other side they were objecting. And when the law was passed, then a set of Brahmins came together that the dance couldn't be lost, and they learned Bharatnatyam and they started performing. And today, of late, the narrative is. And then what happened? A lot of Devdasis, kids and all, they were forced to convert. They didn't have anything to do, so they were given money by missionaries and they converted. So now the same people have come back and say that Brahmins have taken away our dance. So Right. first those guys were forced to give up saying it is bad. When Brahmins Hmm. resurrected it, now these guys are being instigated to come and claim that Brahmins took away our dance. And these Christians are now doing a Christian Bharatnatyam. So how you create a fault line, how we appropriate the culture, that's what they've done. They've appropriated saffron color. They've created fake chalisas, Purans for Christian base.
And it's very taking a very dangerous turn. They have bought there are pandas who write the ancestral history, Vanshavali. Right, right. So I was just reading a newspaper last couple of years back that they've gone back and bought it from some of the pandas. Generally, normally they don't sell. Now they will change the whole Vanshavali of our ancestors and start claiming that people were Christians, your forefathers were Christians from that time. So they're playing a very long, deceptive war. And Bharatanatyam is and now we have seen what is happening in terms of classical music, T.M. Krishna and the awards, the current controversy that is going on. Yes, That's just an extension of that. Okay, now they have taken away the dance, they are taking away our classical songs. And they create artificial fault lines on caste lines, and our own people start fighting and siding with them, and ultimately we lose everything. right. I'll give another classic example, Patachitra. Patachitra started when Bhagwan Jagannath goes on Rath Yatra to meet Mausi. 9 days is worshipped on the Patachitra. It's that old, thousands of years. The Hmm. government documents I have given in the book is prescribed as a secular art, and now it's a part of Hunar Mela. Now suddenly you have Islamized it. Now Right. tomorrow somebody will go to the court saying कि इस पे जगन्नाथ जी की मूर्ति नहीं बननी चाहिए, पेंटिंग को हमारे धर्म को या हमारे आस्था को ठेस पहुंचती है, and Supreme Court will pass a judgment, and suddenly Patachitra's connection is gone. That's step by step, how they alienate us from our own culture. Yeah, I've been to Raghurajpur and I have seen the artisans how they are making, and uh, Lord Jagannath is the like it's a symbol of the whole art thing. You cannot Yeah, take away. It's a part and parcel kind of a thing. yeah, Identity of the whole art, yeah. Lord Jagannath. So, like similar thing happened with the Jallikattu also. It was because it was a traditional Hindu, it symbolized that thing. So that's why that was also attacked. Whereas when we see be it in Christian, when they do Thanksgiving, uh, trees are cut for Christmas. Nothing happens. Nobody bothers about environment. Same with the Bakrid. At Bakrid, nobody bothers about cutting so many animals. PETA doesn't involve, but in Jallikattu, the PETA also. So how Jallikattu is like affecting them so much that they resorted to interfere and trying to stop it. So I'll put it. I have in the book, like I've talked about anti-mandir framework and how does it everybody plays a different role. So Yes. how are mandirs being lost? So rituals discontinued, traditions Hmm. broken, activities chiseled away, Hmm. pujaris abused, mandirs alienated, mandirs destroyed, devotees discouraged, mandirs attacks and devotees killed. Who are behind it? Seculars, communists, Abrahamics, who act as a catalyst in this destruction. These are public interest litigation and right to information. What are the tools of destruction? That is media and NGO, and that's where PETA comes. And Right. who executes it? Obviously, it's politicians, judiciary, bureaucracy, and the government. So, Jallikattu is something very important part. It preserves the traditional variety of cow that we have, and as a part of Operation Flood and all, we have got a lot of foreign variety of cows. And if you talk to the local people, the farmers who keep cows, they said they fall so sick so often that you will have to employ a doctor continuously to keep these cows. Okay. And so you are in that cycle that आपको दवा खरीदनी है, doctor खरीदना है, and they are only they'll give you the milk. They can't be used on anything else. Well, traditional variety of cows are more uh, accustomed to our weather, whichever part of India they are. Then they can eat what is available there because that's what they have grown for thousands of years. जी जी. They may not be giving high milk, but then they don't fall sick also so often. Right, So they right. have their own local significance why they are needed. Resistance, I Yeah, think resistance. resistance is more. So you are just wiping out, and I'll give you a parallel example to it. See, why are mandirs I called a center of Arthavavastha? So there are many roles. It's not only generation of revenue or money. So
yeah, so cabbage, cauliflower, potato, tomato are not Indian vegetables. They're all imported from West. In fact, potato, British gave money to farmers to grow the way they gave for dalda and other things Okay. to promote. So Puri, Mathura, in the mandirs of Puri and Mathura, this are not used in prasad. जो हमारे ट्रेडिशनल सब्जी Right. है, and Yes. just because of that those sabjis have survived, those vegetables have survived, or we would have lost them. I'll give you a current example. You go in the market, the traditional guavas are not available. Those huge variety of guavas which are Right. testless are available, Right. Right. now we grow tomatoes like testless tomatoes because they have to be of specific size to fit in a sandwich in a Subway or a KFC somewhere, uh, in Orissa, there is to be close to a lack of variety of rice. Now, only few thousand have survived, and that too because those rice are offered as a part of bhog to Puri Jagannath Mandir. That's why the farmers grow. Otherwise, you would have lost those varieties of rice also. And just Right. imagine to save these varieties of rice, government will have to set up an agriculture lab to. Otherwise, they are kept alive by the mandir and the farmers. And that, and if you look around, take a count across India, only those vegetable fruits survive or flowers survive, which are associated with the mandir. Otherwise, everything is gone. I think that's why like my mother keeps telling me कि हम लोग तो बीमार पड़ते ही नहीं थे, हम लोग तो पूरा ठीक ठाक रहे हैं, खाने में टेस्ट था, अब कुछ किसी चीज में फ्लेवर नहीं है, and it does not build immunity, obesity, everything is coming to India which was not there. करेक्ट. तो हमारे यहाँ साइकिल था कि लाइक हमारे यहाँ प्रसाद भी कई मंदिरों में सीजन के हिसाब से बदलता है. जी. एंड दैट इज समथिंग. तिल गुड़ मकर संक्रांति में एवरीबडी नोज, तिल गुड़ गिव यू एनर्जी एंड कीप यू वार्म. Right. So it was linked to it. अब आपने उन चीजों को हम रिप्लेस कर देंगे तो बचेगा क्या? राइट. राइट. सिमिलरली दिवाली पे अब चॉकलेट्स के जाते हैं इंस्टेड ऑफ मिठाई, द ट्रेडिशनल मिठाई दैट यूज्ड टू बी, like some people used to make it at home only. Yeah. So all that essence, the traditions, they are And the Diwali has also actually, become secular now. yeah, and what we are losing is our cultural knowledge. Yeah. बाद में Yes. वही चीज हमें पेटेंट करके वापस दी जाएगी, जैसे बासमती और हल्दी के साथ हुआ था. Hmm. उनकी भी लड़ाइयाँ मंदिरों के ही स्क्रिप्चर से लेके लड़ी गई कि हमारे यहाँ रिकॉर्डेड है. मतलब Right. Right. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, there is another very important, significant and interesting aspect जो आपकी बुक में है कि अगर हम देखते हैं मतलब there was जो रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट का जो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, मंदिर की एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से there was a treaty signed between the rulers of Travancore with Union of India, that the temple management will be taken care of by Hindus selected by there was a protocol that has to, but it has to be Hindus. But now what we see is अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु के या केरल के मंदिरों की, तो हम ये देखते हैं कि वहां पर जो who are taking care of, वही लोग जो हैं वो एंटी हिंदुत्व और दे कर्स हिंदुइज्म एंड अदर थिंग इज कि वो जो है एक तरह से दे आर अगेंस्ट हिंदू, दे आर प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियनिटी एंड दे आर हैविंग हिंदू नेम्स. सो ये इस चीज का कैसे कैसे बना, कैसे ये सिस्टम, हाउ डिड इट चेंज एंड हाउ वी कैन इस चीज से कैसे बचा जा सकता है कि जो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, क्योंकि ट्रीटीज हो गई उसके बाद. आई रिमेम्बर देयर वाज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डला था एक, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का ये था कि इट वाज कि हिंदू जो टेम्पल्स जो है वो उसका कंट्रोल हिंदूज के पास होना चाहिए. सिमिलरली द रेवेन्यू इज आल्सो यूज्ड ऑन द हिंदूज ओनली. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि व्हेन द मनी इज कलेक्टेड, द रेवेन्यू जो आता है वो पब्लिक से आता है, तो पब्लिक अगर
पे ही खर्च होता है तो इट डजंट मेक, इसमें हमारे कोई इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो दैट PIL वाज वो कर दिया गया था, डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया था। इट वाज नॉट, बट ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन जो है विद हिंदू नेम्स, उनका कैसे होगा? या जैसे जो बड़े बड़े मंचों पे दे टॉक अबाउट इरेडिकेशन ऑफ हिंदुत्व और इरेडिकेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म वगैरह, कुछ भी वो बहाना, मतलब कुछ भी वो किस तरीके से, तो हाउ वी कैन इस चीज को लेके क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? व्हाट डू यू देखिए, थिंक? मैं पहले मंदिरों पे बताता हूँ। तो जी। एक कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस के बाद से डीटी को माइनर डिक्लेयर कर दिया गया और कहा कि डीटी कांट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बड़ी ओके। हास्यास्पद बात है ओके। कि डीटी इज माइनर। भगवान संसार के होते हैं, हम मानते हैं। और हम्म। हमारे यहाँ हमेशा परंपरा रही कि राजा जो होता था अपना राज्य भगवान के नाम पे चलाता था। तो ट्रावंकोर के राजा ने अपने राज्य दे दिया था 1750s में भगवान को, बट ये बहुत पहले से होता आया है। जगन्नाथ मंदिर हजारों साल पुराना है और आज भी राजा झाड़ू लगाते हैं। कई डायनेस्टी बदली, बट सबने ये माना कि वो भगवान के दास हैं। और केरल में भी पद्मनाभ दास, तो भगवान के दास थे, ही वॉज रिप्रेजेंटिंग। तो राज्य भगवान का था। यहाँ उल्टा हो गया है कि राज्य हैज बिकम बिगर देन द भगवान। तो पहले तो वो लॉ एक करेक्ट करना है। दूसरा, हम्म। जो आपने कहा कि नॉन क्रिश्चियंस मंदिर में है, तो ये नॉन हिंदूज मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे किसी भी और फेथ के हों। उसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, हिंदुओं को आवाज़ उठानी होगी। उन्हें बड़ा इंटरेस्ट है मंदिर चलाने में, तो इन सबको, जो भी नॉन हिंदूज मंदिर में इन्वॉल्व रहे हैं पास्ट में भी, उन सबको हिंदू डिक्लेयर कर दिया जाए, उनकी फैमिली को। तो हिंदुओं को वोकल बनना पड़ेगा, वॉक द टॉक करना पड़ेगा। अगर हम ये मानते हैं, देखिए हिंदू बड़ा कंफ्यूज है आजकल। कई सारे कहेंगे कि आज़ादी मोहनदास करमचंद गांधी ने नहीं दिलाई, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस उनके तरीके से आई। तो हम्म। सरकार को मंदिर से भी हटाना है तो मोहनदास करमचंद गांधी के तरीके से तो जाएगी नहीं। हम्म। तो हमको अपनी कथनी और करनी में मैचिंग करनी पड़ेगी। अ, और ये कुछ डिमांड्स उठाने होंगे, क्योंकि जो क्रिश्चियंस आए हैं बहुत अच्छा स्वागत है, वो घर वापसी ही करनी है सबकी। और उनको मंदिरों में एडमिनिस्ट्रेशन में रहना है, तो उनको और उनके परिवार को पास्ट में भी जो है बाय डिफॉल्ट हिंदू घोषित कर देना चाहिए। और ये डिमांड होनी चाहिए हिंदुओं की, सरकारें अपने मैनिफेस्टो में लाए, अभी नहीं तो अगले बार इलेक्शंस में लाए। और ये होना चाहिए। क्या आइदर दे सरेंडर देयर जो उनकी पोस्ट है, पोजीशन है जो मंदिर से रिलेटेड, और दे सरेंडर कन्वर्ट की बात ही देमसेल्व्स? नहीं है। एक्सेप्ट कर लिया मतलब उन्होंने हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लिया। ओके। ओके। उन्हें भले ही मालूम है वो क्या कर रहे हैं ना, उनको छिपा के तो हम्म। बनाया नहीं जाता कि भाई इस मंदिर में अचानक से जी। बोरे में पकड़ के लाए और खोला बोरे से हम्म। बाहर, अब तुम एडमिनिस्ट्रेशन देखो। उन्हें नहीं तो नहीं। मालूम है ऑफिशियल लेटर होता है, वो उस यस। दिन से हिंदू डिक्लेयर कर दें, या जिन्होंने जिस दिन से उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो ये राइट। राइट। समस्या का समाधान तो बहुत सिंपल है कि जिन्होंने भी किया है वो कर दिया जाए बैक डेटेड। मुझे नहीं लगता उन्हें भी कोई समस्या होगी, क्योंकि उन्होंने हिंदू मंदिर में आना स्वीकार किया है। क्योंकि उन सबके धर्म में कहा जाता है कि आप अन्य धार्मिक स्थलों पे नहीं जा सकते हैं, गए तो आप उस रिलीजन के नहीं रहे। तो उसमें किसी को लीगली कोर्ट में लेने की और हर चीज़ कोर्ट में जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म का मामला है। और मेरा मानना है कि धर्म समाज का विषय होता है, कोर्ट का नहीं होता है। जजेस कोई पंडित पुजारी या स्क्रिप्चर्स पढ़े नहीं है, तो एक तो पहली हमारी गलती है कि हम हर चीज़ को कोर्ट में लेके चले जाते हैं। जैसे मैंने पुस्तक में भी कहा है कि हमें जितने भी अपने मंदिर के लोग आपसी झगड़े को लेके कोर्ट में गए हैं, वो कोर्ट से पहले बाहर आ जाए। क्योंकि वहां पे वही होता है जो हमने बचपन में कहानी पढ़ी कि दो बिल्लियां एक रोटी को लेके झगड़ती हैं और बंटवारे के लिए बंदर के पास जाती हैं। और बंदर आधा आधा करने की कोशिश में पूरी रोटी खा जाता है, उनको कुछ नहीं मिलता। तो ये हिंदुओं का भी वही हाल है, जो हर छोटी चीज पे कोर्ट में चले जाते हैं। और मंदिरों में सरकार की एंट्री जो आपने पूछा था, ज्यादातर मंदिरों में एंट्री सरकार की तभी हुई है जब वहां के पुजारी या कॉमन लोग आपस में लड़े और सरकार के पास गए। अब जहां आप कोर्ट में गए, आपने सरकार को न्योता दिया कि आइए आप हमारे काम में इंटरफेयर कीजिए, तो सरकार करेगी। तो सरकार से पहले हमें कई सारे करेक्टिव स्टेप्स खुद भी लेने होंगे। और अगर हम इन दो चार बेसिक चीज़ों पे ध्यान देने लगे तो बाकी चीज़ें उनकी बाई प्रोडक्ट है, उनका समाधान अपने आप हो जाएगा। जी जी। आपकी जो वॉल्यूम 2 है बुक, जो है, इट्स डिकेड फॉर मंदिर, मंदिरों के लिए एक दशक,
इसमें आपने कुछ जो रॉन्ग कंस्ट्रक्ट्स हैं उनकी बात की है, तो प्लीज आप बताइए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो है ये आई थिंक एक रीडर को के लिए भी बहुत एक्साइटिंग रहेगा। और प्लीज इफ यू कैन जैसे हाँ सोने की चिड़िया और हाँ वसुदेव कुटुंबकम, इसके बारे में बताइए आप, हाँ। व्हाट इज द अच्छा, एक्चुअल रोल। तो देखिए, ये सोने की चिड़िया भी रॉन्ग कंस्ट्रक्ट था। चिड़िया इसलिए सोने की क्योंकि चिड़िया मतलब गौरैया, नॉर्मल भाषा में जो हमारे खिड़कियों में भी घूमती है, कि हम उसको जब मर्जी पकड़ के तोड़ मरोड़ के मार देंगे। अगर हम थे तो हम गरुड़ होना चाहिए था, सोने का गरुड़ होते या जी शेर होते। जी भरत, राजा भरत के नाम पे भारत का नाम पड़ा, और उनकी महानता ये थी कि वो बचपन में शेर के दांत गिनते थे। तो हमने कहीं हाथी को अपना रिप्रेजेंटेशन मान लिया या चिड़िया मान ली, जबकि होना गरुड़ था। इंडोनेशिया में आज भी गरुड़ है, वहाँ के कमांडोज जो एलिट कमांडो है वो गरुड़ है। जो यूएस के साथ सबसे बड़ी नेवी एक्सरसाइज होती है उसका नाम ऑपरेशन गरुड़ है। तो हमने गलत आइडेंटिटीज एक्सेप्ट की। दूसरी कि ये हिंदू जो शब्द है, सिंधु से आया, तो भाई सिंधु नदी तो आज भी बह रही है, और सिंध तो आज भी पाकिस्तान में है। तो जी उसका भी नाम हिंद हो जाता है ना, सिंध कैसे रह गया? सबसे पहले तो वहां अटैक हुआ। तो ये बेसिक सवाल हम नहीं पूछते हैं, जो हमें कुछ भी कचड़ा पढ़ा दिया जाता है और हम उसको संभव आत्मसात कर लेते हैं। तो ये चीजें ही समस्या होती है। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम इतना पुराना है, चाणक्य से भी पहले था। तो चाणक्य फिर क्यों लड़े ग्रीक से? अलेक्जेंडर से नहीं लड़ते, उनको बुला जी के बसा लेते। जी तो वसुदेव कुटुंबकम वो था जो अखंड भारत का हिस्सा था, जो हिंदू था, जी बाकियों के लिए नहीं था। हमने खून से लड़ा, सबसे लड़ा, उनको नहीं बसाया गया। तो जी जी वसुदेव कुटुंबकम वो होता है कि जो हिंदू है, जो दूसरी जगह से आया। क्योंकि पहले होटल नहीं होते थे, उसके पहले शायद शुरू से धर्मशाला भी नहीं रहे होंगे, तो आप कहीं भी जाएं तो आपके लिए दरवाजा खुला मिलता था। तो हमारे लिए, जैसे अब काशी में हजारों साल से तमिलनाडु से रहने वाले लोग आ रहे हैं, कर्नाटक के राजा आते ही रहेंगे, तभी उन्होंने वहां के लिए जिजिया के लिए पैसे दिए। तो होटल नहीं थे तो लोग कहाँ रहते होंगे? तो ये था कि आप कहीं भी चले जाएंगे आपको भोजन मिलेगा और घर के सामने सोने की जगह मिलेगी। तो वसुधैव कुटुंबकम का वो भाव था, ये नहीं कि दुनिया से कोई भी आए तो रह ले। और उस समय वैसे भी जो आज यूरोप है और अमेरिका है, उस समय वहाँ कोई ऐसा रहता नहीं था जो वहां से आता। आने वाले लोग थे जो बहुत हुआ, तो ग्रीक आया, हून आया, सबसे लड़ाइयाँ लड़ी हम लोगों ने। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब सही अर्थ में समझना होगा हमें। और ये सुपरफिशियल जो हम चीज़ों को लेते हैं आलस में, या हमें पढ़ाया नहीं जाता है, या हम खुद रिसर्च नहीं करना चाहते, सोचना नहीं चाहते, उन गलतियों का नतीजा है जो हम अभी तक भुगतते आ रहे हैं। हमने कृष्ण भगवान, देखिए बहुत क्लियर है कि भगवान राम को जब देखते हैं तो तीर धनुष के साथ देखते हैं। कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र हमने हटा दिया, राधे राधे कर दिया। और ये बहुत बड़ा कारण है कि राम जन्मभूमि के लिए तो लड़ाई हुई, इतने वर्षों तक होते रही, कृष्ण जन्मभूमि को लोग भूल गए थे। क्योंकि हम वो राधे राधे में चले गए, भक्ति भाव में इतने डूब गए कि लड़ना छोड़ गए। जबकि कृष्ण मतलब सुदर्शन चक्रधारी, जैसे भगवान राम मतलब धनुषधारी। तो उन मूर्तियों की स्थापना बदलनी होगी, कि जो हमने बांसुरी धारक कृष्ण की पूजा करते हैं वो छोड़ के हमें चक्रधारी कृष्ण की पूजा शुरू करनी पड़ेगी। जी और जी, अगर आई हम नहीं थिंक करेंगे ऐसे तो ही। सभ्यता का उद्धार नहीं होगा। जी जी, और वैसे भी जो है श्री कृष्ण को इतना मतलब भगवत गीता को देखते हैं तो उसमें आपको एक गंभीर जो है ना, एक गंभीर देव जो है वो आराध्य जो है वो नजर आते हैं। तो यू संभव जो उनको समझ पाते हैं उनके लिए जो है, वैसे भी इस जो है जो रासलीला वाले हैं वो मतलब बहुत देर इज अ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग वो है। हाँ, और देखिए गीता को भी हमने एंड व्हाट ढालियों काइंड ऑफ लोगों ने। मैसेज, हाँ व्हाट काइंड ऑफ मैसेज दैट इज गिविंग, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम गीता का ज्ञान चाहते हैं, उस तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, या जो है हम दूसरे उनको फोकस करेंगे, दूसरी जो है भावनाओं को वो। देखिए, वही बता रहा हूँ कि गीता को पाखंडी लोगों ने शांति का ग्रंथ बता दिया और जंप स्किप कर जाते हैं। गीता ये कहता है कि अधर्मी को सबसे विभत्स तरीके से हत्या करो, उसके बाद शांति की स्थापना होगी। दुर्योधन के जांग का खून से जब द्रौपदी अपने बाल पोंछती हैं, उसके बाद जाके शांति की स्थापना होती है और धर्म की स्थापना होती है। तो आप सीधा गीता पढ़ के सीधा शांति की स्थापना की बात करने लगते हैं तो वो पाखंडी है, उनको समझ ही नहीं आए या झूठ बोल रहे हैं।
तो हमें अपने धर्म ग्रंथों को सही तरीके से समझना होगा। और इन्हीं चीजों को हटाने के लिए ऐसी बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई। जैसे ये कहे कि कृष्ण का जो कृष्ण और अर्जुन महाभारत के युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, अगर वो फोटो घर में लगाएंगे तो घर में लड़ाइयाँ होंगी, तो जी। महाभारत मत रखिए। इनफैक्ट हाँ। गीता, भगवत गीता भी पहले नहीं था हाँ, ये प्रचलन घर में रखने का, कि भाइयों में लड़ाई हो जाएगी, बताइए। परिवार में वो होगा। तो न जी पांडव पांचों में लड़ाई हुई, न कौरवों में लड़ाई हुई, दोनों एक दूसरे से लड़े वो तो रहे। और जी जी। चीन से आया हुआ फेंग शुई आके आप घर में रख लीजिए तो घर में अच्छी आवाज हो जाएगी, ये चीज हम समझ जाते हैं। तो जी समस्या हम लोगों में भी है कि हम लोगों ने अपना दिमाग खर्च करना छोड़ दिया है। वो जो आई थिंक बता वो दिया। ट्रेडिशन बीच में टूट गया, वो जो हजार साल की जो हम लोगों में जो मतलब प्रताड़ना जो रही हमारे, जो मुझे लगता है कि वो हाथ जो था। रहे उसमें अब वो इंटरप्रिटेशन भी तो बहुत बहुत गलत रही अब वो है। एक्सक्यूज बहुत लंबा चल गया। जी जी जी। वो तब तक था, हमें लगता है कि हमारे फादर की पीढ़ी तक, जब उनको इकॉनमी बनानी थी, देश की मेहनत करनी थी, तो बाकी चीजों के लिए समय नहीं आया। आज के लोगों के पास, माता पिता के पास एक ही दो बच्चे हैं, उनके पास सफिशिएंट पैसा है कि अपने दिमाग लगाएं और सोचें और सवाल पूछें। अब वो मेहनत उनको नहीं करनी है कि देश की अर्थव्यवस्था बनानी है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी हो या तीसरी इकॉनमी हो, फर्क नहीं पड़ता है। हम अपना धर्म और सभ्यता बचा सकते हैं कि नहीं, वो ज़्यादा जरूरी है। दुनिया में 200 के करीब देश हैं। हर आदमी नहीं लड़ा हुआ है इस बात पे कि हमको दुनिया की सबसे नंबर वन इकॉनमी बननी है। ज्यादातर देश बैलेंस करके चलते हैं कि अपनी सभ्यता के साथ उनको बैलेंस रखना है। स्पेनिश स्पेनिश बोल रहे हैं, कुरियन कुरियन बोल के बड़े हो रहे हैं, जर्मन जर्मन बोल के बोल रहे हैं, जापानीज जापानीज बोल के नंबर वन इकॉनमी हो रहे हैं, और हम क्या करके हो रहे हैं, वो सोचने की बात है। यहाँ तो लैंग्वेज को लेके भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं हिंदूज में। कास्ट के बाद आई थिंक लैंग्वेज इज द, मतलब दूसरा वो है जिसमें हिंदू बहुत बटे हुए हैं। रीजन तो हाँ, है ही और है। ये हमें सोचने की जरूरत है कि आप फ्रीडम मूवमेंट कोई पढ़िए, हमने पढ़ा नहीं है। मेरी पहली पुस्तक फ्रीडम फाइटर्स पे थी। तो क्या वो इससे बड़ा देश था, कम्युनिकेशन के टूल कम थे, तो क्या सुबह स्वामी विवेकानंद जब गए चेन्नई, उनका इतना स्वागत हुआ, तो क्या वो तमिल में बोल रहे थे? या गुजरात में क्या उनको सपोर्ट मिला तो क्या गुजराती में बोल रहे थे स्वामी विवेकानंद जी? जी 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 या जी। लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पॉल या वीओ चिदम्बरम पिल्लई जब बम्बई आए या दिल्ली आए तो क्या तमिल में बोले? बाकी सबको तमिल आती थी। मतलब हम किस बात के लिए झगड़ रहे हैं? हम 75 साल पहले, या 75 क्या, फ्रीडम फाइटर कई सारे उसके बाद भी जीवित रहे, वो किस भाषा में बात कर रहे थे और किस भाषा में झगड़ रहे थे? तो इसी से मुझे एक और एपिसोड याद आता है, जब मैंने राम जन्मभूमि बुक के लिए रिसर्च कर रहे थे, तो उसमें माझा प्रवास का, अगर आप को विष्णु वरसाईकर जो थे, जो 1857 की जो वो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जो थी, उसमें वो ट्रेवल कर रहे थे काम के लिए। वो पुणे के रहने वाले थे, और वो तब झांसी में भी रहे और ग्वालियर में भी रहे। तो उन्होंने वहां पर वहां का पूरा मतलब जो स्थिति थी वो सब उन्होंने लिखी है। और उन्होंने अयोध्या की राम जन्मभूमि में रामनवमी के दिन जो वहां पर उत्सव का माहौल था, और ये भी मेंशन किया है कि पूरे मतलब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले वहां पर जो है लाखों की तादाद में, आई थिंक ही हैज मेंशन 5-6 लाख पीपल। तो अब जो है कैसे वहां अलग भाषाएं बोलने वाले एकत्र होते हैं रामनवमी मनाने के लिए, वो भी उस टाइम में जब साधन भी इतने नहीं थे। तो हिंदुओं को डिविज जो ये डिवाइड जो है, और अब जो है अब के नेता जो है वो बोलते हैं कि कर्नाटक की, जैसे अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आई थी कि हमारे जो है कर्नाटका में राम को, श्री राम जी को पूजा नहीं जाता है। तो मतलब ये जो चीज है ये चलती रहेगी। पर एक चीज बताइए संदीप जी, जो ये छोटी छोटी जो जो आप जो एनेक्डोट्स आपने दिए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अपने आप में कॉन्क्लूसिव है वो। मतलब थैंक दे यू। स्ट्रेट अवे टेल यू कि दिस इज द ट्रूथ, दिस इज अ फैक्ट, एवरीथिंग इज इन दैट। तो एक जो अभी की जनरेशन है, जो मिलेनियल जनरेशन है, उसके लिए ये कहाँ, मतलब इफ दे आर डोंट वांट टू, मतलब बुक्स अगर पूरी उनका पढ़ने का मन नहीं है, तो व्हाट इज द सोर्स, उस चीज का क्या मतलब, कैसे हम उनके लिए वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो दैट दे आर अवेयर अबाउट देयर कल्चर, एंड विदाउट ज्यादा वो, क्योंकि दे हैव अदर थिंग्स आल्सो। तो कैसे अवेयर वो करें अपने आप को।
देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। अगर हम उन्हें बताएं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मैं जो जी पढ़ाता हूँ भारतीय मैनेजमेंट, वो आके पूछते हैं कि सर हम लोग को ये आज तक पढ़ाया क्यों नहीं गया। इनवेरिएबली हर बैच में ये मुझसे पूछा जाता है। जी और जी जी पूछा जाता है कि सर हमें एमबीए में पढ़ाया जा रहा है, ये चीज़ें तो हमें स्कूल से पढ़ाई जानी चाहिए थी। जी तो गलती हमारी है कि हम बताते नहीं है और हम मान लेते हैं कि वो आलसी हैं या उनको सिंप्लीफाई करके बताना है। अ, बच्चे, हर आने वाली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। क्या हमने वो रिसोर्सेज अवेलेबल कराया? क्या हमने? हम तो उस पीढ़ी में देखते हैं कि जहाँ पेरेंट्स को ही नहीं पता है, वही बेचारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है। वही लगे हैं कि तुम इंग्लिश में बोलो, लोग प्राउडली बताएंगे कि हमारा हाँ बच्चा मदर टंग नहीं बोल पाता है। वही लोग जो झगड़ रहे होंगे बाहर अलग अलग अपनी मातृभाषा के लिए, अपने बच्चे को नहीं सिखा रहे होंगे, प्राउडली क्लेम करेंगे इसको मातृभाषा अपनी आती नहीं है। वो यू कांट स्पीक हिज मदर टंग, ही कैन ओनली कन्वर्स इन इंग्लिश। अब ऐसे लोगों पे हंसे कि रोएं, ये समझ में नहीं आता है। तो हम उनको अपने कल्चर से दूर कर रहे हैं, हम उनको अपने तीर्थ यात्राओं पे नहीं ले जा रहे हैं, तो हमारी गलती है। हमको छुट्टियों में उनको विदेश दिखाना है कि हम बताएंगे, और वो विदेशों से ज़्यादा अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विदेश मत ले जाइए और देखिए, बट आपको भारत भी दिखाना पड़ेगा, अपने गाँव भी दिखाने पड़ेंगे, तब जाके वो जुड़ेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो भी आजकल जितनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूबर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं जो कई अच्छा काम कर रहे हैं, और आजकल कई सारे लोग इन विषयों पे लिख रहे हैं, और बहुत यंगस्टर्स लिख रहे हैं। बहुत से यंगस्टर्स हैं जो संस्कृत सीख रहे हैं। तो उनके यंगस्टर्स या नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं परेशान नहीं हूँ, खाली हम चीज़ों को उनके सामने तक पहुँचा पाएँ तो चीज़ें पहुँच जी जाएंगी। जी मैं ऐसा मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि मैं कई सालों से बच्चों से पढ़ाता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, और मुझे कहीं नहीं लगा कि उनमें कहीं इंटरेस्ट कम है, उनमें मुझसे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट है। जी जी जी। आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए, जो आप स्पेशली जब आप भारतीय सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट या जो आप कराते हैं, तो सम इंटरेस्टिंग मतलब एपिसोड, द फीडबैक दैट यू गेट व्हेन हाँ। यू, आप कुछ नया जब मतलब नया भी नहीं, जब आप पुराना कुछ बताते हैं, तो व्हाट इज देयर रिएक्शन, हाउ दे टेक इट? See, first they come with lot of skepticism, uh, and then whatever I teach, they go back and cross check. Lot of faculty don't allow student to sit with a laptop or mobile. I allow them because they want to constantly verify whatever I am saying. Unfortunately, we have been trained in a such way कि अगर हमको हमारे बारे में अच्छा बोला जाए, देश या पूर्वज के बारे में, तो we start doubting. खराब बोला जाए तो हम तुरंत मान लेते हैं. So they start verifying it. They'll have lot of questions. And one will have to answer each of the questions and not beat around the bush. और जब तक आप उनके क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, देन दे बिकम द ब्रांड एम्बेसडर्स. And there lot been lot I can be very frank that in lot of places there have been lot of attempt to remove my courses, but it's the students who have fought back and asking for the course. And as I said, the feedback they give, that keeps the courses alive. And they're very upfront always. They say, I wish we could have studied earlier. I wish. They recommend that there should be more courses like this. It should be of longer duration course. So it clearly gives way. And in many places the student, after a couple of classes, they come to know. So even if they have not taken those subjects, they come and sit in the class, and that is the enthusiasm and the interest part. A lot of them remain in touch to study. They keep asking which book to read. uh, so these are the few experiences, and that keeps me going, because we know that there's a demand for it, and uh, they will love it. So like this book, I went and so far I've spoken in few colleges. I was invited, and amazing response from the students everywhere. I didn't had a single bad experience, and I'll tell you, even those people who are not Hindus, they come back because I asked them, why have you opted for this course? They say, no, sir, these are our ancestors. I need to know. And they score highest mark without any ill will, because what we teach them is a fact. There's no agenda behind it. Tell them that is Right. our true story, and that's how we were, and they appreciate it. And that's a very positive feedback and very optimistic one. Yeah. And you are talking about the youngsters. There is another thing, that crosses one's mind, and you have mentioned in your book also about pilgrimage and tourism.
the difference and how one is the profitable. तो उसका क्या नुकसान क्या है अगर today we see like all the temples और जो है वहां पर भीड़ है, बहुत बेहिसाब भीड़ है. तो एंड प्रमोशन भी गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है. so many like इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में भी बहुत lot of changes and development has happened. So do you think टूरिज्म और जो पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज इज फॉर जो हमारे लिए ठीक है, और टूरिज्म विच इज प्योरली प्रॉफिट सेंट्रिक, तो इज इट गोइंग टू लाइक लॉन्ग टर्म हार्म करेगी हमें? Yeah, so I'm strictly against so-called the word religious tourism. हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा होती है और दोनों में बहुत अंतर है. आप टूरिज्म में जब जाते हैं तो आप अलग माइंडसेट से जाते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू गोवा, गोवा में बहुत से मंदिर है बट नॉर्मल पोजीशनिंग उनकी अभी भी नहीं हुई है, लोग बात नहीं करते हैं. तो गोवा मतलब कि समुद्र के पास जाएंगे, शराब भी पिएंगे, मस्ती भी करेंगे. आई एम नॉट गेटिंग इनटू के गुड बैड, लोगों को रिलैक्स करना चाहिए, जाना चाहिए. बट अगर हम ये कहें कि जो गोवा जाने वाला व्यक्ति बनारस आ गया, काशी जी आ गया, तो फिर हम ही ऑब्जेक्ट, ये गंदे कपड़े पहने या इस तरह की हरकत की, इस तरह की वीडियो बना के पोस्ट की. भाई वो गोवा जा रहा था, आपने उसको काशी बुला लिया, अभी जो गोवा में करता है वो काशी जी में कर रहा है. तो तीर्थ यात्रा पे जाना एक अलग माइंडसेट होता है. जब तीर्थ यात्रा पे आप जाते हैं तो आप अपना व्यापार छोड़ के जाते हैं. हमारे पूर्वज जैसे जाते थे तो वो आप, तब कम्युनिकेशन के साधन भी नहीं थे, आप छोड़ के जाते थे. आप सब जाते हैं तो हमारे यहाँ कहा गया है कि तीर्थ में आप जब जाते हैं तो न जाति होती है, न वर्ण होता है, न पैसे का डिफरेंस होता है. सब एक साथ जाते हैं, धर्मशाला में जाते हैं, एक लाइन में खड़े होते हैं, एक साथ भगवान के दर्शन करते हैं और सत्संग भी एक साथ करते हैं. तो आज भी हम जब मंदिर जाते हैं तो क्या हमको कभी फुर्सत होती है कि आजकल एक कंसेप्ट वीआईपी दर्शन का. और मैं पॉइंट करके को उदाहरण बताता हूँ कि जैसे वीआईपी दर्शन, भाई वीआईपी किस बात का? जो 200 रुपया 500 रुपये दे वो कैसा वीआईपी? वीआईपी वो होता है जैसे महाराजा रणजीत सिंह ने पूरा काशी जी के मंदिर पे सोने चढ़वा दिए, वो व्यक्ति वीआईपी हुआ. हर 200 500 देने वाला कौन सा वीआईपी? और ये वीआईपी वालों को भी समझना चाहिए कि ये होगा कि ये सुबह के शाम की हवाई जहाज से गए, काशी जी में 5 स्टार में रहे, शाम को वहाँ 5 स्टार हैं इसलिए कहेंगे कि हमको शराब भी पिलानी है, तो फिल्मी भद्दे गाने भी सुनाने हैं, फिर सुबह उठ के वीआईपी दर्शन किए, फ्लाइट लेके आगे की 10 11 बजे से ऑफिस भी ज्वाइन कर लेंगे. तो भाई आपने दर्शन करे कहाँ? आपकी भक्ति भाव रही कहाँ? अब 4 बार आके जाके बोलेंगे कि भाई मैं 4 साल से जा रहा हूँ, कुछ हुआ ही नहीं. भैया आप बिजनेस ट्रिप पे थे, आपको पैसे दिखावा करना था, आप भक्ति भाव से गए नहीं थे. तो यहाँ दो एस्पेक्ट हैं कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 5 स्टार होटल नहीं होने चाहिए मंदिरों में, बट जबकि 5 स्टार होटल होते हैं जैसे बीचेस पे. गोवा में आप जाएंगे तो वहाँ के होटल्स में जो बीच पे हैं उनमें कारपेट नहीं होता है, क्योंकि बालू पाँव के साथ आएगा, कारपेट खराब हो जाएगा. तो आपने उस जगह को अडेप्ट किया है कंडीशंस को. तो मंदिर में आए हैं, मंदिर शहर में है, तो आपको भी अडेप्ट करना होगा. वहाँ शराब नहीं मिलेगी, फिल्मी गाने नहीं बजेंगे. आप योगा सिखाने वाले रखते हैं, फैशन स्टेटमेंट में सत्संग कराइए आपके वहाँ पे, तो बात समझ में आती है. तो 5 स्टार होटल रखें बट उनको वो कल्चर अडॉप्ट करना होगा और हम हिंदुओं को डिमांड करना होगा इस चीज़ का. और आगे जाते हैं. जब आप तीर्थ यात्रा पे गए, आप मंदिर पहुंचे, तो आप मंदिर में जब खड़े होते हैं तो वहाँ की जो चित्रकारी होती है वो देखते हैं तो आपको कई चीजें समझ में आती हैं. वो हमारा कॉमिक, टीवी नहीं थे तब, वो पूरा डिस्प्लेड है, पूरे रामायण पूरे महाभारत हर मंदिरों पे. तो आपको समझ में आता है कि कैसे क्या चीज दिखाई गई थी. आप लाइन में खड़े होते हैं तो देश के विभिन्न हिस्से से आए हुए लोगों से मिलते हैं तो बातचीत करते हैं. आप हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ का पंडा आपको बताएगा कि आपके पूर्वज जो थे, परदादा और उनके परदादा कब यहाँ आए थे. तो क्या हमने कभी 2 मिनट मौन खड़ा होकर सोचा कि हम उसी धरती पे खड़े हैं जहाँ हमारे पूर्व वंशज खड़े थे? क्या हम जब पुरी गए तो क्या हमने 2 मिनट खड़ा होकर सोचा कि ये उसी भूमि पे चल रहे हैं जहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य चले थे? जी क्या हमने वो बिल्कुल. कनेक्ट किया? क्या हम अयोध्या जाके आए, जो भीड़ आ जा रही है, 2 मिनट खड़ा होके किसी ने सोचा कि हम उसी धरती पे खड़े हैं? क्योंकि हम वहां गए तो मानता हूँ कि आस्था है कि हमारे पूर्वज भगवान श्री राम और माता जानकी उस भूमि पे खड़ी थी जिस पे हम आज खड़े हैं. अगर हमने अनुभूति नहीं ली तो हमारी भक्ति क्या हुई और हमारा तीर्थ यात्रा क्या हुआ? हमें सोशल मीडिया में फोटो डालने के लिए तीर्थ यात्रा नहीं होती है, वो रिलीजियस टूरिज्म है. या आप गोवा जाइए या कहीं और जाइए, बट जब आप भक्त करने जाते हैं तो आप भगवान से दर्शन के लिए जाते हैं, वहां के भगवान को देखने जाते हैं. जब आपने वो सब नहीं किया, आपको फुर्सत ही नहीं है फोटो खींचने और आपके पैसे का डिस्प्ले करने की, तब आप में ना भक्ति रही ना आपको उसका कोई फायदा होगा.
आप हर साल आइए जाइए और फिर कहेंगे भगवान हमारी सुनती नहीं है भाई, क्योंकि आपकी भक्ति नहीं है। तो मैं अभी जो हो रहा है उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि कई सालों के बाद या हजारों सालों के बाद वो रिसरेक्शन है। जी बट हम गलत हों इससे पहले हम संभल जाए। जी जी जी। और ये ऐसा होता है, और मेरा मानना है कि हम लोगों को बताएंगे, क्योंकि मैं जहां भी बताता हूँ लोग इस चीज को स्वीकारते हैं कि हाँ आप सही बता रहे हैं, हमें अब इस तरीके से सोचना होगा। जी अ, जी जी। तो ये चीजें हमें जरा ध्यान रखने की बात है। मुझे लगता है अगर हम ऐसी ही चर्चा करते रहे हर मीडियम्स पे, तो बातें लोगों तक पहुंचेंगी, और हिंदू जाग रहा है और ये बात को भी आत्मसात करेगा। मंदिरों की संस्कृति को बचाए रखना बहुत जरूरी रहेगा। अगर वो बची रहेगी, संस्कृति बची रहेगी, तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि फिर जो हो हल्ला या जो टूरिज्म वाला जो है वो ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। आप देखेंगे तो कि एक अब हिंदुओं में भक्ति भाव तो आ गया है। बहुत चेंज आया है पिछले 10 सालों में। जो है ड्रास्टिक चेंज है, जो अब यंग जनरेशन, दे आर inquisitive, they are interested about their history, their culture, and all these practices that जो अध्यात्म से लेके आपके सोशल और आपके जो है जीवन के मूल्यों को लेके, आपके फाइनेंशियल उसको स्टेटस को लेके, सब चीजों को लेते हुए जो है अब आज की पीढ़ी जो है वो उस तरीके से चलना चाहती है। तो अध्यात्म अब पीछे नहीं छूटा है, जो बीच में there was some generation. So I think your book, which tells about all these aspects, the historical journey also, एक एंशंट उससे कल्चर से, एंशंट सिविलाइजेशन का जो हम बोलते हैं कि वहां से शुरू होके इट हैज कम टू द मॉडर्न इंडिया, द सो कॉल्ड मॉडर्न। तो इट इज अ ब्यूटिफुल, बोथ द वॉल्यूम्स आर रियली ब्यूटिफुल, बहुत अच्छी जर्नी है, फुल ऑफ फैक्ट्स है। और देर इज नो, इट्स नॉट ओपिनियनेटेड इन द सेंस कि बिल्कुल सब चीजों को जर्नलाइज नहीं किया हुआ है। Every aspect is covered in detail. So that is what I like, and I recommend your book. And I think this book is a significant step in that direction, making people aware of the culture of our great civilization. So I think with this we can end the video I interview. have 2 points to make, if you will let Yeah, me. please. Sure, please. One is that we need to stop calling our place of worship as temple. We need to call them as mandir. Yes. Reason being कि Christians go to church, Muslims go to mosque, even Jews go to synagogue, but Hindu goes to temple. But temple is a place of worship of pagans. Pagans are those who don't exist, Mayan civilization or Egyptian. It is not, our temples are a living, we are a living civilization, and our temples have lived. Kashi ji is there for thousands of years. So we need to call it as a mandir. And second thing, what I call the second volume, Decade for Mandir, is that it doesn't matter we are rich or poor, young or small, we must give 10 years, next 10 years of our life to the temple, mandirs. And it's very simple. You did not do anything big. Just start going to the mandir every day. If you visit mandirs every day, 365 days for next 10 years, our mandirs will revive. You won't need to do anything much more. Yeah, that is such a wonderful thought. Thank you so much, Sandeep ji. Thank you. It was wonderful, like listening to you, and equally wonderful are your books. Thank you Thank so you much. so much. Thank you. Okay, friends. So if you like the video, please subscribe the channel, and we'll be back with another episode of Authors and Books with another author and book. Thank you so much. Okay, thank you, Sandeep ji. Thank you. Thank you so Thank you. much. Thank you.